Good morning, students. In our last class, we had studied the different components of aggregate supply and aggregate demand. This chapter assumes a closed economy with no government intervention. Therefore, there exist only two sectors. One is household sector and second one is your firm sector. So this is a simple two sector economy. So in a simple two sector economy, there exist two sectors, household sector and household sector and firm sector. Therefore aggregate supply is equal to C plus S and aggregate demand is equal to C plus I. Okay, so here we will concentrate on consumption, saving and investment. So let us start with consumption function. The functional relationship between income and consumption expenditure. The functional relationship between income and consumption expenditure is called consumption function. Okay. This function shows that there is a positive relationship between income and consumption expenditure. Okay. Positive relationship between income and consumption expenditure. It means a rise in income leads to rise in consumption expenditure or vice versa. Okay, clear? Now, according to Professor J.M. Keynes, John Maynard Keynes, no doubt there exists a positive relationship between this independent variable and dependent variable. Okay, positive relationship between this independent variable income and dependent variable consumption expenditure. Okay, means increase in income leads to increase in consumption expenditure, but the rate of increase in income is always more than the rate of increase in consumption expenditure. The rate of increase in income is always more than the rate of increase in consumption expenditure, and even if income reduces to zero, consumption expenditure can never be zero. Okay, and this is known as your Keynesian psychological law of consumption. Keynesian psychological law of consumption states that the rate of increase in income is always more than the rate of increase in consumption expenditure, and even if income reduces to zero, consumption expenditure can never be zero. Okay, so accordingly, this one is your consumption equation. Okay, this one is your consumption equation. What is this consumption equation? C is equal to C bar plus MPC into Y. Here C stands for consumption equation, consumption expenditure. Consumption expenditure. C bar stands for your autonomous consumption. MPC stands for marginal propensity to consume. Okay, and Y stands for income. Clear? C stands for consumption expenditure, C bar stands for autonomous consumption, MPC stands for marginal propensity to consume, and Y stands for income. Okay, so here this is nothing but your linear equation. Those who are the math students, they might be knowing that linear equation, in linear equation, this is a linear equation. Y is equal to a plus bx. Here x is your independent variable, y is your dependent variable. Okay, x independent variable, y is your dependent variable, a is your intercept and b is your slope. Okay, so this one is also your linear equation. If we put these two in the same case, then C bar is your intercept, MPC is your slope. Okay, so autonomous consumption means the intercept of the consumption line, and MPC is your slope of the consumption line. Okay,
So let us understand what is autonomous consumption. Autonomous consumption means consumption expenditure corresponding to zero level of income. So as stated above, even if income reduces to zero, consumption expenditure can never be zero. Means consumption expenditure always remains positive. So the amount of income, the amount spent on consumption expenditure when income is zero, that amount is known as your autonomous consumption. Okay, so consumption expenditure corresponding to zero level of income is known as autonomous consumption. Now MPC, marginal propensity to save, a marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume, it is nothing but the ratio of change in consumption expenditure to change in income. Okay, so MPC is a ratio of change in consumption expenditure and change in income. Clear? In the same way we can understand this concept APC, average propensity to consume. ठीक है, APC नथिंग बट योर रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू इनकम. Okay, so APC, the formula of APC is C by Y and the formula of MPC is delta C by delta Y. So let us understand this concept with the help of a schedule. Let us take Y, income, as 0, 20, 40, 60, 80, 100 and 120. This is represented in terms of rupees. Now as stated above, consumption, the rate of increase in income is always more than the rate of increase in consumption expenditure. Okay, now this consumption is 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees, 60 rupees, 70 rupees and 80 rupees, like this. Okay, so when your income is 0 rupees, you are consuming 20 rupees. When your income increases to 20 rupees, your consumption increases to 30 rupees. When your income increases to 40 rupees, your consumption increases to 40 rupees, like this. Understood? Now let us calculate APC and MPC. The formula of APC is C by Y. The formula of MPC is delta C by delta Y. Okay, so APC C by Y, 20 divided by 0. C 20, Y हो गया 0, 20 by 0 is equal to infinite or indeterminate. Therefore, we have put a dash mark here. Okay, like this. MPC, delta C by delta Y. So here your consumption is 20. So what is the change in consumption? We don't know because no value is given above this amount 20. So we cannot find the change in consumption expenditure. Okay, so like this, income is 0. What is the change in income? That also we don't know. Okay, so delta C we don't know, delta Y we don't know. Therefore MPC, delta C by delta Y we don't know. That is why we have put a dash mark here. Okay, so let us count second one. Consumption 30, income 20. APC will be 30 by 20, 1.5. Clear? Now C 40, Y 40. APC will be 40 by 40, 1. C 50, Y 60. APC will be 50 by 60, 0.83, like this. Clear? Now MPC, change in consumption 20 to 30, 10 rupees, and change in income 0 to 20, 20 rupees. So 10 by 20 is equal to 0.5. Again, change in consumption 30 to 40, 10 rupees, and change in income from 20 rupees to 40 rupees, 20 rupees. So 10 by 20, 0.5. Clear? Like this, we can count the other values of MPC also. So let us understand this with a diagram. So we have taken income in your x-axis and consumption expenditure on the y-axis. Just remember one thing, you should take the same scale on both the axis. मतलब हो गया कि ये देखिए, ये डिस्टेंस देखिए 20 कितना है डिस्टेंस, ये 20 उतना डिस्टेंस होना चाहिए, ये 40 जितना डिस्टेंस है, ये 40 उतना डिस्टेंस होना चाहिए. मतलब दोनों एक्सिस में स्केल समान होना चाहिए, तभी जाकर डायग्राम सही से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. ठीक है, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120 लिख दिए, यहाँ भी 20, 40, 60, 80, 100, 120 लिख दिए. अब हम लोग एक्चुअल वैल्यू को यहाँ प्लॉट करेंगे. देखो जीरो इनकम में 20 कंजम्पशन, तो जीरो इनकम में 20 कंजम्पशन, फिर 20 रुपीज़ में 30 कंजम्पशन, 20 रुपीज़ में 30 कंजम्पशन, फिर 40 रुपीज़ में 40 कंजम्पशन, 60 रुपीज़ में 50 कंजम्पशन,
इस तरह से ये सब डाटा को हम प्लॉट करेंगे, ये सब प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करेंगे, देखिए इस तरह से आपको लोकस मिलता जाएगा। अब ये लोकस को हम लोग जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये जो लाइन बना इसे कहते हैं कंजम्पशन लाइन या कंजम्पशन कर्व। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या समझे हम लोग, जैसे यहाँ बताया था आपको, ये हुआ इंटरसेप्ट सी बार और एमपीसी हो गया आपका स्लोप। तो यहाँ पे समझते हैं उसको। ये जो कंजम्पशन कर्व है ये वाई एक्सिस के जहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से वहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज नोन एज योर इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग सी बार कहते हैं। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद जिस रेट में ये कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोप हो रहा है, दैट रेट इज नोन एज एमपीसी। अब ये रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा समझते हैं इसको। रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये सब लाइन ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए ये हो गया इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। एक ठो ट्रायंगल लेके, कोई भी एक ठो ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से हो गया। नाउ दिस वन इज 90 डिग्री और सपोज दिस वन इज थीटा एंगल। सो दिस साइड विल बी योर हाइपोटेन्यूज, दिस वन विल बी योर perpendicular and this one will be your base. Clear? Now tan theta is equal to P by B. क्लियर हो गया इस तरह से। तो P by B अगर हम लोग समझ गए तो यहाँ पे देखो कोई भी ट्रायंगल एक तो देखो, ये क्या हुआ हमारा, ये कंजम्पशन लिए हैं 40 से 60 या 20 से 40, तो चेंज हो रहा है कंजम्पशन, ये हो गया आपका डेल्टा सी। और यहाँ पे क्या लिए हैं, इनकम लिए हैं, तो ये हो गया आपका डेल्टा वाई। कैसे, पहले इनकम 40 था अब 60 हो गया, चेंज हो गया, तो ये डेल्टा वाई। तो पी की जगह पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा सी और बी की जगह पर लिखेंगे डेल्टा वाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डेल्टा सी व डेल्टा वाई दिस इज नोन एज योर एमपीसी। क्लियर हो गया। तो एमपीसी क्या कर रहा है, वो ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हो कंजम्पशन लाइन, इसका स्लोप को मेजर कर रहा है। क्लियर हो गया। सो दिस इज नोन एज योर एमपीसी एंड दिस वन इज योर सी बार। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग समझ गए हैं तो इसको हम लोग सेविंग इक्वेशन में भी अभी प्लॉट करेंगे, सेविंग फंक्शन में इसको यूज़ करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, कैसे देखो, नाउ इज सेविंग फंक्शन। व्हाट डू मीन सेविंग फंक्शन, व्हाट डू मीन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज नोन एज सेविंग फंक्शन। क्लियर हो गया। हियर ऑल्सो इनकम इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेविंग इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव या तो डायरेक्ट, मतलब कि इनकम अगर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा और वाइस वर्सा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंजम्पशन इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे दिस वन, ये जो कंजम्पशन इक्वेशन है यहाँ से हम लोग अब सेविंग इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो समझ लो थोड़ा सा, देखो जैसे हम लोग जानते हैं इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेविंग विल बी इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन होगा ना। अब हम लोग क्या किए हैं, इसमें सिंपली ये जो कंजम्पशन है इसके जगह पे कंजम्पशन इक्वेशन को प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो y माइनस, देखो y माइनस सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। अब y की जगह पे y लिख दिए, ब्रैकेट अगर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बार माइनस प्लस माइनस एम पी सी इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे, y देखो कॉमन हो जाएगा, कर लेंगे उसमें, तो माइनस सी बार को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब ये y और ये y कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस एम पी सी हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल, ये हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस एम पी सी इंटू वाई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आए, देखो ये जो सी बार है, सी बार की जगह पे हम लोग एस बार लिखे, क्योंकि सी बार तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। पढ़े ना अभी हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम हो या ना हो, अगर इनकम जीरो भी है तो भी हम लोग कंजम्पशन में पैसा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आएगा, अगर आपका इनकम जीरो है तो आप पैसा कहाँ से लाए कंजम्पशन में खर्चा करने के लिए। ठीक है, क्या होता है, अगर आप का पास्ट सेविंग है, अगर आप पहले से पैसा जमा करके रखे हो तो उसको विड्रॉ करोगे, विड्रॉ करके आप कंज्यूम करोगे। अगर आपका पास्ट सेविंग नहीं है तो आप बोरो करके उसको कंज्यूम करोगे। ठीक है ना। तो ये जो एस है, खाली एस अगर लिखते हैं सेविंग, लेकिन जब हम माइनस लगा दिए तो ये हो जाएगा विड्रॉल ऑफ सेविंग। क्लियर हो गया, विड्रॉल ऑफ सेविंग समझ में आया ना। तो ये माइनस को नीचे लिखे और सी बार के जगह पे एस बार किए।
समझ में आया? क्योंकि जितना जीरो इनकम में जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही अमाउंट हम लोग विड्रॉ करेंगे, इसीलिए सी बार की जगह पे एस बार लिखे और माइनस की जगह माइनस लिखे। माइनस क्यों लिखे? क्योंकि आप सेविंग को विड्रॉ कर रहे हो यहाँ पे, विड्रॉल ऑफ सेविंग। ठीक है, क्लियर हो गया? सो व्हाट डू मीन ऑटोनोमस सेविंग? ऑटोनोमस सेविंग मीन्स सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम। समझ में आया? सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम, सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड ऑटोनोमस सेविंग। अब 1 माइनस एम पी की जगह पे हम लोग लिखे एम पी एस। तो एम पी एस फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, और वाई हो गया आपका इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, आपके दिमाग में आता होगा कि 1 माइनस एम पी सी की जगह पे एम पी एस कैसे लिख दिए? 1 माइनस एम पी सी की जगह पे एम पी एस कैसे लिखे? ये तो रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशनशिप है और इसी की वजह से हम लोग 1 माइनस एम पी की जगह पे एम पी एस लिखे हैं। अब इसको प्रूव कर देते हैं, रिलेशंस बिटवीन एम पी सी एंड एम पी एस। तो एज वी नो वाई इक्वल टू सी प्लस एस, तो चेंज इन इनकम रिजल्ट्स चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग। ठीक है, बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड्स विद डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। हो गया, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई इसको अलग कर दिए, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई हो गया 1, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई की जगह पे लिखेंगे एम पी सी और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई की जगह पे लिखेंगे एम पी एस। ठीक है, तो क्या हुआ? 1 इज इक्वल टू एम पी सी प्लस एम पी एस। हो गया, तो अगर एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है तो एम पी सी का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस एम पी एस। एम पी एस का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस एम पी सी। क्लियर हो गया? उसी तरह से ए पी सी और ए पी एस के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ए पी सी ए पी एस, जैसे वहाँ पे पढ़े कंजम्पशन पोर्शन में एम पी सी ए पी सी पढ़े, वैसे यहाँ पे एम पी एस भी है और ए पी एस भी होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय एस। ठीक है, और ए पी सी का होता है क्या हो गया? ए पी एस का हो गया एस बाय वाई, एस बाय वाई, और ये हो जाएगा आपका सी बाय वाई। ठीक है, ए पी सी सी बाय वाई और ए पी एस एस बाय वाई। क्लियर हो गया? ए पी सी सी बाय वाई और ए पी एस एस बाय हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, तो अगर दोनों साइड को हम लोग वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई बाय वाई इक्वल टू सी प्लस एस बाय वाई, तो वाई बाय वाई इक्वल टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई। हो गया, तो वाई बाय वाई की जगह पे 1 लिखे, सी बाय वाई की जगह पे ए पी सी लिखे और एस बाय वाई की जगह पे ए पी एस लिखे। तो क्या रिलेशन बना? 1 इज इक्वल टू ए पी सी प्लस ए पी एस। तो अगर ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 होता है तो ए पी सी का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस ए पी एस, और ए पी एस का वैल्यू कितना होगा? 1 माइनस ए पी सी। ठीक है, अब इसी सेविंग का जो हम लोग यहाँ पे समझे कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा शेड्यूल में समझते हैं। इनकम ले लीजिए, जैसे वहाँ लिए थे इनकम 0, 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। अब सेविंग निकालना पड़ेगा। वहाँ पे कंजम्पशन कितना लिए थे याद है? कंजम्पशन 20, 30, 40 ऐसे लिखे थे ना। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा? वाई माइनस सी। अरे जितना इनकम करते हो उसमें से जितना कंजम्पशन में खर्चा कर देते हो उसके बाद जो बचेगा वही ना सेविंग होगा। तो वाई माइनस सी इक्वल टू सेविंग हो गया। तो वहाँ पे हम लोग इनकम कंजम्पशन लिखे थे 20, तो 0 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 20। वहाँ पे कंजम्पशन लिखे थे 30, तो 20 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 10। इस तरह से माइनस 20 माइनस 10 कहाँ से डिराइव किया पता चला वाला वैल्यू? इनकम जो लिए हैं और कंजम्पशन जो वहाँ पे लिखा हुआ था उसको माइनस करो तो ये वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से ए पी एस और एम पी एस निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है ए पी एस का? ए पी एस का एस बाय वाई, ये हो गया आपका डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। ठीक है, तो जैसे ए पी एस बाय वाई माइनस 20 बाई जीरो, माइनस 20 बाई जीरो करेंगे तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डैश लिखे हैं। वैसे एम पी एस में क्या होगा? अगर यहाँ पे सेविंग माइनस 20 है तो चेंज इन सेविंग कितना हुआ? नहीं बता सकते ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं ना दिया है। चेंज कितना हुआ कैसे बता पाएंगे हम लोग? नहीं बता पाएंगे। तो डेल्टा एस नहीं बता पा रहे हैं, वैसे वाई बताओ, वाई कितना है? 0 है। डेल्टा वाई बताओ तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके पहले तो कोई वैल्यू दिया नहीं है। तो चेंज कितना हुआ इनकम में नहीं बता पाएंगे। तो डेल्टा एस भी नहीं बता पा रहे हैं और डेल्टा वाई भी नहीं बता पा रहे हैं, तो हम लोग एम पी एस भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डैश लिखे। ठीक है, उस तरह से आगे देखो, ये हो गया एस हो गया माइनस 10 और वाई हो गया आपका 20। ए पी एस कितना होगा? एस बाई वाई माइनस 10 बाई 20 माइनस 0.5। फिर एस हो गया 0, वाई हो गया 40, 0 बाई 40 0। एस हो गया 10, वाई हो गया 60, तो ए पी एस हो गया 10 बाई 60
0.17। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कर लीजिएगा। अब एमपीएस का देखो क्या होगा। अब यहाँ पे चेंज कितना हुआ देखो, -20 से -10, 10 चेंज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 20 चेंज हुआ, तो 10/20 0.5। फिर -10 से 0 कितना हुआ, 10 चेंज हुआ। फिर 20 से 40 कितना हुआ, चेंज हुआ, 20 चेंज हुआ, तो 10/20 0.5। इस तरह से बाकी सब कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको डायग्राम बनाते हैं। एकदम समान कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो स्केल लिए हैं दोनों समान होना चाहिए। एक्स एक्सिस में इनकम, वाई एक्सिस में सेविंग ले लिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो एकदम समान होना चाहिए। यहाँ से यहाँ देखो 20 है, तो यहाँ से यहाँ 20, तो समान डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 20 40 करके ले लिए। अब देखो 0 इनकम में सेविंग कितना किए, -20, देखो -20 हुआ। फिर 20 इनकम में कितना सेविंग किए, -10, तो ये हो गया -10। फिर 40 इनकम में 0 सेविंग, कहाँ गया, 40 इनकम में 0 सेविंग। फिर 60 इनकम में 10 रुपया सेविंग किए हैं, 80 रुपया में 20 रुपया सेविंग किए हैं। इस तरह से इसको प्लॉट कर लीजिएगा। अब ये जो लोकस मिला आपको, ये जो पॉइंट मिला है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये जो लाइन मिला, जो कर्व मिला, इसे कहते हैं सेविंग लाइन या सेविंग कर्व, ठीक है। यहाँ पे भी एकदम समान कॉन्सेप्ट। तो अगर ये भी लीनियर इक्वेशन है तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका स्लोप। तो बताओ ओरिजिन से वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस कि जिस पॉइंट से ये लाइन शुरू हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ये ला हो गया, ये रहा होगा ना, ये डिस्टेंस हो गया आपका -s बार, मतलब इंटरसेप्ट ऑटोनॉमस सेविंग। अब ये जिस रेट में बढ़ रहा है ऊपर, ये ट्रेंगल मिलता गया आपको। अब ट्रेंगल से स्लोप निकाल सकते हो, डेल्टा एस, ये होगा डेल्टा एस, ठीक है, ये होगा आपका डेल्टा वाई। इस तरह से आप यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हो। तो ये होगा आपका एमपीएस। दोनों का कॉन्सेप्ट समान, कंजम्पशन और सेविंग जो है दोनों का कॉन्सेप्ट, ये जो लाइन है, ये स्लोप और इंटरसेप्ट समान होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, कंजम्पशन और सेविंग अगर हम लोग समझ गए, अब ये दोनों को मिला के हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बनाएंगे, ठीक है। कैसे, ये देखो एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाएंगे। इनकम लिए हैं 0 20 40 60 100, 0 20 40 60 80 100 120। कंजम्पशन 20 30 40 50 60 70 80। सेविंग कैसे होगा, y माइनस सी, 0 से 20 गया -20, 20 से 30 गया -10, 40 से 40 गया 0, इसको निकाल दिए। अब एस का फॉर्मूला क्या है, C + S, C + S करो, देखो 20 -20 0, 30 -10 20, दोनों को जोड़ो, टोटल करो उसको, 30 + -10 20 होगा ना, 40 + 0 40, 50 + 10 60 हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है एकदम ये वैल्यू समान होगा, समान है कि नहीं, ये 0 0 20 20 40 40 60 60 समान हुआ। तो y = AS हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, y = AS लिख सकते हैं। अब इसको अगर डायग्राम बनाएंगे कैसा होगा, देखो यहाँ पे इनकम लिए एक्स एक्सिस में, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लिए, और कॉन्सेप्ट समान, दोनों का स्केल समान होना चाहिए दोनों एक्सिस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो 0 इनकम में एग्रीगेट सेविंग भी 0, तो 0 में 0, 20 में 20, 40 में 40, 60 में 60, 80 में 80, 100 में 100। तो ये जो लोकस मिलेगा, ये जो लोकस मिला आपको, ठीक है ना, इस तरह से 20, देखो 20 इनकम में 20 AS, 40 इनकम में 40 AS, 60 इनकम में 60 AS। तो ये जो लोकस मिला इसको जोड़ देंगे, तो ये जो लाइन बनेगा ये हो जाएगा आपका इनकम लाइन या तो एग्रीगेट सप्लाई लाइन, हो गया। अब अगर दोनों समान है तो निश्चित रूप से ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा आपका, ये 45 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना एग्रीगेट सप्लाई कर्व या इनकम कर्व जो है ओरिजिन के साथ 45 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, हो गया। आप थोड़ा सा रिकॉल करो, उस कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व दोनों को अगर यहाँ पे बनाएंगे, याद आ रहा है, देखो दिखाते हैं कंजम्पशन कर्व और सेविंग कर्व। ये देखो ये हो गया आपका सेविंग कर्व, ठीक है। सेविंग कर्व पहले बना देते हैं, 20 फिर -10 फिर 40, इस तरह से है ना, 20 -10 40, इस तरह से ये लाइन हो गया आपका सेविंग, ठीक है। कंजम्पशन कैसे बनता है, ये देखो कंजम्पशन 20 30 40 इस तरह से गया है ऊपर, ठीक है ना। देखो 20 फिर 40 में हो गया आपका यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे होगा 30 फिर 40, इस तरह से ना,
क्लियर हो गया? ये हो गया आपका सी, सी इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई और एस इक्वल टू माइनस एस बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। हो गया? तीनों कंजम्पशन भी बना, सेविंग भी बना और ए एस भी बन गया, तीनों यहाँ पे आ गया। क्लियर? और लास्ट पार्ट, लास्ट हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। एज वी नो इन्वेस्टमेंट इज अदरवाइज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट डू मीन इन्वेस्टमेंट और व्हाट डू मीन कैपिटल फॉर्मेशन? द इंक्रीज इन द अवेलेबल स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी in an accounting year is called investment. Clear? The increase in the available stock of capital in the economy in an accounting year is called investment. Investment are of two types. One is autonomous investment, another one is your induced. Autonomous investment हमेशा याद रखना, autonomous मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इंड्यूस्ड मतलब डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? तो अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अगर ये डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इनकम। ठीक है? तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन इनकम। समझ में आया? अब इसको डायग्राम में समझो। एक्स एक्सिस में इनकम लिए, वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट लिए। ठीक है? जैसा अभी बताया यहाँ पे, ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। इनकम से इसको मतलब नहीं है। देखो, जीरो इनकम में भी 10 इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 रुपया। अगर इनकम बढ़ के 10 रुपया हो गया तो भी इन्वेस्टमेंट 10 ही रुपया है। अगर इनकम बढ़ के 20 रुपया हो गया तो भी इन्वेस्टमेंट 10 ही रुपया है। इस तरह से ये जो लोकस मिला आपको, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये जो लाइन बनेगा ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट लाइन। तो इसका शेप कैसा होगा? ये देखो, हॉरिजॉन्टल। ठीक है? हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू इनकम एक्सिस। कहाँ से शुरू हो रहा है ये? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स अपॉन इनकम। मोर द इनकम मोर विल बी योर इन्वेस्टमेंट, लेस द इनकम लेस विल बी योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है? ये हो गया आपका इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं? इनकम और इन्वेस्टमेंट ले लिए। एक्स एक्सिस में इनकम, वाई एक्सिस में इन्वेस्टमेंट लिए। अब देखो, जीरो इनकम होगा ना तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो ही होगा। अगर इनकम बढ़ गया तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर इनकम फिर बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ेगा। ठीक है? क्लियर हो गया? इस तरह से ये जो लोकस आपको मिल रहा है, ये ऐसा नहीं कि 10 इनकम होगा तो 10 इन्वेस्टमेंट होगा, 20 इनकम होगा तो 20 इन्वेस्टमेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो रेट अलग अलग हो सकता है। ठीक है? लेकिन बात यह है कि इनकम होगा तभी जाके आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इनकम नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। ठीक है? तो ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वाला कर्व बना, ये कैसा हो रहा है? इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। ठीक है? और कहाँ शुरू हो रहा है ये? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से शुरू होता है और अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक है? तो हम लोग जो अभी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, उसमें हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, खाली इसी को यूज़ करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। ठीक है? सो विद दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू very much.